Hello student, good morning to all. Today we will solve question number 5 of exercise 2a. In previous videos we have learned questions number 1, 2, 3 in homework 4, and now let us solve question number 5. 1. Student, here find the sum. यहाँ पर हमको सम फाइंड कर रहा है. टू फ्रैक्शंस गिवन. Here we see that the denominators of the given fractions are same, so we add directly. We write only denominator 9 because when denominators are same, then numerators will be added. 5 plus 3. We get 5, 3, 8. 8 upon 9. This is your answer. Now question number 2. Here denominators are not same, so first of all we take LCM of the denominators 9 and 12. Here we solve in rough or one side of your page. LCM 3 3 ja 9, 3 4 ja 12, 3 1 ja 3, 4, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2. Here LCM 3 3 ja 9, 9 2 ja 18, 18 2 ja 36. LCM is equal to 3 3 ja 9, 9 2 ja 18, 18 2 ja 36. Now next step, we here we write 36 LCM, and now one by one we divide from the denominators into LCM. We divide 9 in 36, we get 9 4 ja 36, and 4 we multiply in numerator. 4 into 8 plus here also we divide from 12 to 36. 12 3 ja 36, and 3 multiply in the numerator. Now here 4 8 ja 32 plus 3 7 ja 21 upon 36. Now we add 2 1 3 3 2 5 5 53 upon 36. Here student, we see that here in numerator 53 and the denominator 36. Here this is the improper fraction because numerator is greater to the denominator, so we divide and change into mixed fraction. Then you write in your answer, या आप इसको भी आंसर लिख सकते हो, या तो आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके आंसर राइट करिए, या तो फिर यही आंसर हो सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हियर ऑल द फ्रैक्शंस गिवन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 3 ja 15, 15 and 4. 5 3 ja 15, 15 and 4 19, 19 upon 5 plus 10 2 ja 20 and 3 23 upon 10 plus 15 1 ja 15 1 16 upon 15. Here we will take LCM of denominator 5 10 15. Here 5 10 15 and LCM we get 30. Now here we write LCM 30. Now one by one we divided LCM 30 by all the denominators. First of all we divide 5 to 30. 5 6 ja 36, and 6 we divide we multiply in numerator. 6 into 19 plus 10 को हम डिवाइड करेंगे 30 में, तो 10 3 जा 30, 3 आएगा. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, प्लस 15 से डिवाइड करेंगे 30 में. 15 2 जा 32 आएगा. 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में. नाउ
Now we multiply all the numerators and we add, we get 215 upon 30. Now we simplify these. We cut from 5 to 5 4 ja 20, 5 3 ja 15 and 5 6 ja 30. We get 43 upon 6. Here 43 upon 6 is in improper fraction, so we divide by 643. We get 6 7 ja 42 and 1 remainder left, 1 upon 6. This is your answer. Now we comes to the question number 6. Here find the difference. Here student, question number 1, 5 upon 7 minus 2 upon 7. Here are the same denominators, so numerators will be subtracted. Here write 7 and here 5 minus 2, we get 3 upon 7. This is your answer. And question number 2, here 6, 5 upon 6 minus 3 upon 4. Here denominators are not same. So first of all we take LCM 6 and 4. 2 3 ja 6, 2 2 ja 4, 2 1 ja 2, 3 3 1 ja 3. Here LCM we get 2 2 ja 4, 4 3 ja 12. Now here we write 12 in denominator and we divide from denominators of the given fraction. 6 divided into 12, we get 6 2 ja 12, 2 and multiply 2 in numerator, minus 4 3 ja 12, 3 into 3. We get 2 5 ja 10 minus 3 3 ja 9 upon 12. 10 minus 9, 1 upon 12. This is your answer. Now question number 4 of question number 6. Here write 7 minus 4 whole 2 upon 3. Here student, one fraction in mixed fraction. First of all we change this improper fraction and this not given the denominator, so we can write as 7 upon 1, because अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो भी हम उसको 1 डिनोमिनेटर में सपोज कर सकते हैं, तो हम इसको 7 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. माइनस इसको चेंज कर देंगे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 3 4 जा 12, 12 और 2 13 14 upon 3. Here we also take LCM of 1 and 3. LCM of 1 and 3 we get only 3. And next same 1 LCM divided from the denominator 1 से डिवाइड करेंगे 3 को तो 3 आएगा. 3 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 7, माइनस 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा. 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ 3 7 जा 21 माइनस 14 1 जा 14 अपॉन 3. हियर सब्ट्रैक्ट 11 में से 4 गया 7, 1 में से 1 गया 7, 7 upon 3. Here student 7 upon 3 is improper fraction. We divide 3 2 ja 6, 1 remainder, 1 upon 3. It means 2 whole 1 upon 3 is answer. Now question number 7, second question. In question number 7 have the 3 questions 1 2 3. Here we will solve question number 2. Here question given 8 minus 4 whole 1 upon 2 minus 2 whole 1 upon 4. Here student 8 only given, not in the form in fraction, so here we can write as 8 upon 1, and here change into improper fraction. 2 4 ja 8 1, 9 upon 2, and 4 2 ja 8 and 1 9 upon 4. Here we take LCM of denominators 1 2 4. Here LCM is we get 4. Now one by one we divided the LCM from the denominators of the given fractions. 1 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 4 आएगा, फिर 4 से न्यूमरेटर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 8, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 इंटू
9 माइनस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 9. नाउ 4 8 जा 32 माइनस 2 9 जा 18 minus 9 1 जा 9 upon 4. Here student, now student here we get 32 minus 18 minus 9. So student, in first chapter you have learnt addition or subtraction of integers. Here minus 18 and minus 9. तो जब minus 18 और minus 9 होगा तो हम numbers will be added and we put negative signs. तो here 18 and 9, 18 and 9 कितना हो जाएगा 27 और माइनस साइन रहेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब हम दो नंबर्स निगेटिव में हो तो वो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे, बट हम माइनस का साइन रखेंगे. हियर 32 minus 27 we get 5/4. Here 5/4 is in improper fraction, so we change into mixed fraction. 4 1 जा 4 and remainder 1 होगा and 4 4 1 जा 4 1 5/4 आ जाएगा. So this is your answer. Now student, we comes to question number 8. Anita bought 3 whole 3/4 kg apples and 4 whole 1/2 kg guava. What is the total weight of fruits purchased? अनीता ने जो है 3 whole 3/4 kg एप्पल्स परचेज किया और 4 whole 1/2 kg गुआवा परचेज किया. तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज, तो टोटल वेट कितना होगा? दैट मीन्स टोटल वेट, दैट मीन्स वी विल बी एडेड गिवन फ्रैक्शंस इन kg. सो सोल्यूशन इज टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बॉट बाई अनीता. यहाँ पर हम टोटल वेट्स को ऐड कर देंगे. 3 whole 3/4 प्लस 4 whole 1/2 इन ब्रैकेट kg. के ब्रैकेट kg लिखने का मतलब है स्टूडेंट कि ये भी kg में है, ये भी kg में, बट हम यहाँ बार बार kg राइट करेंगे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी. सो हियर वी राइट इन ब्रैकेट फ्रैक्शंस एंड नाउ हियर वी राइट kg. Now we change mixed fraction into improper. 4 3 जा 12, 12 3 15, 15/4 plus 2 4 जा 8 1 9/2. Now we take LCM of the denominator. 4 and 2 का LCM लेंगे. 4 और 2 का LCM 4 होगा. अब फिर 1 by 1 हम डिवाइड करते जाएंगे. LCM को डिनोमिनेटर से 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा. 2 से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे 9 into 2. नाउ here 15 plus 9 2 जा 18/4. Here we add 33/4 kg. This is an improper fraction, so we can change in mixed fraction. स्टूडेंट, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा आंसर अगर आपका, तो आप क्या करोगे कि उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दो. वैसे आंसर ये भी है, बट ज़्यादा अच्छा होता है कि अब जब इम्प्रॉपर में आ रहा है तो आप उसको चेंज कर दो मिक्स्ड में. दिस इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ paper is 15 whole 3/4 centimeter long and 12 whole 1/2 centimeter wide. एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है. रेक्टेंगुलर, यू लिसन केयरफुली, रेक्टेंगुलर दैट मीन्स वो रेक्टेंगुलर टाइप का है. एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर. तो इट्स पेरीमीटर दैट मीन्स हमको वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर. तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्टूडेंट क्या होता है आपको पता है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ. Now here we use the length of rectangular sheet of paper 15 whole 3/4 centimeter and breadth 12 whole 1/2 centimeter. Therefore the perimeter of rectangular sheet of paper is equal to 2 into length plus breadth. ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का 2 into L plus B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ. नाउ वी पुट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ. 2 into लेंथ कितना है 15 whole 3/4 centimeter प्लस ब्रेड्थ कितना है 12 whole 1/2 centimeter. नाउ फर्स्ट वी चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है तो हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. 15 4 जा 60 एंड 3 ऐड करेंगे 63/4. 12 2 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25/2. नाउ वी टेक LCM 4 and 2, वी गेट LCM 4. नाउ वी फ्रॉम द डिनोमिनेटर्स डिवाइडेड इनटू LCM. 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा. 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 63 into 1. नाउ हियर आल्सो 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा. 2 से न्यूमरेटर में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 25 into 2. नाउ हियर वी सॉल्व दिस
we get 63 plus 25 into 2, 50 upon 4. Now we add 63 plus 50, 113 upon 4, and here 2 से 4 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, we get 113 upon 2. Now we divide 113 to 2, we get 56 whole 1 upon 2 centimeter. This is your answer. So the perimeter, its perimeter is 56 whole 1 upon 2 centimeter. Now we comes to the question number 10. A picture is 7 whole 3 upon 5 centimeter wide. How much should it be trimmed to fit in a frame? 7 whole 3 upon 10 centimeter wide. Student, it means a picture है जो कि 7 होल 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर वाइड है. हाउ मच शुड इट बी ट्रिम, इसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा. ट्रिम का मतलब उसको कितना साइड से छाटना होगा कि उसको एक फ्रेम में फिट किया जा सके. इट मीन्स स्टूडेंट, यहाँ से ये पता चलता है कि जो पिक्चर है वो फ्रेम की लेंथ से ग्रेटर है. इट मीन्स कि पिक्चर जो है फ्रेम से बड़ी है, तभी तो उसको ट्रिम करना होगा, तभी तो उसमें वो फिट हो पाएगा. तो उसको फिट करने के लिए हमको क्या करना होगा, पिक्चर को ट्रिम्ड करना होगा. तो कितना ट्रिम्ड करना होगा, जैसे आपका कोई फ्रेम है और इसमें कोई पिक्चर आपको लगानी है और वो पिक्चर जो है इस फ्रेम से बड़ी है, तो हम उस पिक्चर को कितना साइड से कितना ट्रिम करेंगे कि वो उस फ्रेम में फिट हो जाए. तो इसके लिए पहले हियर सिंस विड्थ ऑफ द पिक्चर 7 होल 3 अपॉन 5 सेंटीमीटर वाइड, पिक्चर की विड्थ इतनी है, और एंड विड्थ ऑफ फ्रेम, और फ्रेम की विड्थ कितनी है 7 होल 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर इन विच वी हैव टू फिट पिक्चर, और इसी फ्रेम में हमको पिक्चर को फिट करना है. तो उस फ्रेम की विड्थ कितनी है 7 होल 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर. नाउ वी विल फ्रॉम द मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज इनटू improper fraction. Here 5 7 जा 35, 3 38 upon 5, and width of frame 10 7 जा 70, 373 upon 10. Therefore picture should be trimmed to fit in frame. That means स्टूडेंट की जो पिक्चर है वो ग्रेटर है, पिक्चर की जो विड्थ है वो ग्रेटर है फ्रेम की विड्थ से. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिक्चर वाले विड्थ से हम फ्रेम वाले विड्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Therefore we write फर्स्ट पिक्चर वाला विड्थ पहले राइट करेंगे, फिर फ्रेम का विड्थ. तो फिर अब यहाँ पर हम 5 और 10 का एलसीएम लेके वही सेम प्रोसेस आपको उसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देना है. एलसीएम लिया 10 आया, फिर यहाँ से फर्स्ट डिवाइड किया 5 को 10 से, 2 आया, 2 से फिर मल्टीप्लाई किया, फिर वही प्रोसेस आपको करना है. फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपको आ गया 76 माइनस 73 अपॉन 10 सेंटीमीटर, वी गेट 3 अपॉन 10 सेंटीमीटर. स्टूडेंट, दिस इज इन प्रॉपर फ्रैक्शन, proper fraction, because here numerator is less the denominator, डिवीजन नहीं हो पाएगा. सो दिस इज योर आंसर. इट मीन्स कि पिक्चर को हम इतना ट्रिम्ड करेंगे तब वो जाकर के उस फ्रेम में फिट हो जाएगा. सो दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. what should be added to 7 whole 3 upon 5 to get 18. here स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 होल 3 अपॉन 5 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमको 18 मिलेगा. दैट मीन्स इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमको 18 मिलेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेटर रिक्वायर्ड नंबर ए. सपोज करिए स्टूडेंट कि हमने इसमें ए ऐड कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, ए ऐड कर दिया टू गेट 18. तो हमको क्या मिल गया, 18 मिल गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जैसे कह रहा है पहले आप उसको वैसे ही राइट कर लीजिए, कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेकर ए बी सी एक्स वाई जेड. तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू ए लिया है कि, और क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे ही आप उसको राइट कर लीजिए कि इसमें हमने ए को ऐड किया है, तो हमने यहाँ पे इसमें ए को ऐड कर लिया और हमको मिल के आ रहा है 18, वैसे ही हमने राइट कर लिया. अब स्टूडेंट हियर दीज वैल्यू इन द लेफ्ट ऑफ इक्वल टू, ये इक्वल टू के लेफ्ट में है, तो ये वैल्यू जब यहाँ से राइट में जाएगी तो ये वैल्यू आगे कोई साइन नहीं है. दैट मीन्स कि ये प्लस में है, ये सारी वैल्यू प्लस में है, तो ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी. तो हाँ, और ये ए अपनी जगह पर रहेगा, तो ए इज इक्वल टू 18 माइनस हो जाएगा 7 होल 3 अपॉन 5. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 18 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 राइट कर लेंगे, माइनस इसको सॉल्व करके प्रॉपर में कर लेंगे 38 अपॉन 5. 5 7 जा 35, 35 में 3 ऐड करेंगे 38 अपॉन 5. नाउ वी टेक एलसीएम 1 and 5 and from 1 by 1 we divide from the denominators to the LCM. We get 5 into 18 minus 1 into 38,
1 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 38 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे 18 5 जा 90 माइनस 38 1 जा 38, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है 52/5 इज इक्वल टू, अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे बिकॉज दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाएगा 10 होल 2/5। दैट मीन्स स्टूडेंट कि ये वही नंबर है जो हमने सपोज किया था, ए की वैल्यू है ये। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 10 होल 2/5। इट मीन्स स्टूडेंट ए इज इक्वल टू 10 होल 2/5 शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। इट मीन्स स्टूडेंट कि अगर हम इसमें 7 होल 3/5 में जो आया है 10 होल 2/5 ऐड करेंगे तो हमको 18 मिलेगा आंसर। स्टूडेंट आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हो, जो आंसर आया है 10 होल 2/5 इसको आप 7 होल 3/5 में ऐड करके देखिए 18 आता है कि नहीं। डू योर सेल्फ। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 to 16 यू सॉल्व इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 12 to 16 here in your book, question number 12, 13, 14, 15, 16 you solve student. If you have any problem then you asked me which question in your problem. First of all you see all the videos carefully and understand, and then solve all the questions, left questions, and after that you solve 12 to 16 carefully. If you have any problem then ask me. Okay student, thanks.